Hello दोस्तों, my name is Saibal Gupta and you're watching your favorite channel that is TVB India. So obviously आपको thumbnail से तो पता चल ही गया होगा कि today I have driven the all new Kia Ceros. तो किया का जो इस लाइनअप पे बहुत सारे गाड़ियां हैं। किया सोनेट में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो है इसका स्पेस मैनेजमेंट। एक्चुअली अंदर जो है थोड़ा सा बंधा बंधा सा लगता है। एंड किया सेल्टॉस में आपको स्पेस तो मिलेगा बट सेल्टॉस थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। तो इन दोनों का बीच में जो एक डिफरेंस है, तो इन डिफरेंस को भरपाई करने के लिए एक्चुअली किया ने लॉन्च किया किया सिरोस। किया सिरोस बनती है सेम प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म पे बनी है Hyundai Venue एंड किया सोनेट। हालांकि इसका जो इंजन का जो परफॉर्मेंस भी है वो भी लगभग सेम ही है किया सोनेट से। सो अभी मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, सो प्लीज एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो। हालांकि इसका जो डिजाइन है थोड़ा सा पोलराइजिंग है according to me, so please enjoy the entire video. So first enjoy the cinematic shot of this particular car and I will meet with you straight inside the car and I'll describe you while driving that how's the car and whether you should buy this car in 2025 or not, or who can actually buy this car. So what are you waiting for? So please enjoy the cinematic shot of this car and don't forget to subscribe my channel that is TVB India and hit the bell icon so that you'll get the earliest notification. Hello everyone, so hope you're doing absolutely well. So as per the thumbnail and the introduction video, already you get to know that I am driving the all new car from Kia and that is Kia Ceros petrol with DCT gearbox. In short, this is actually petrol automatic version. So now start करते हैं इस गाड़ी के प्राइस के साथ. So Kia Ceros price starts at 9 lakh and it goes till 18 lakh and इस प्राइस ब्रैकेट पे किया सिरोस में मिलता है पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक मिला के टोटल 13 वेरिएंट्स. सो दिस इज़ द टिपिकल कोरियन कंपनी. सो ऑब्वियसली इतने वेरिएंट्स डाल दो कि गाड़ी का प्राइस ब्रैकेट में मिला हुआ सारे गाड़ियों के साथ ये गाड़ी कंपटीशन करती है. ओके, सो चाहे वो सिडान हो या चाहे प्रीमियम हैचबैक हो या चाहे हमारी और आपकी पसंद एसयूवी. सो किया इज़ कॉलिंग दिस कार एज एसयूवी. So in this video we will discuss that does this car is really a SUV or how practical this car in 2025, and also we will discuss that in this moment Kia will inspire us or not. But yes, what is actually I forgot to tell you that for this exact price figure you need to visit to the nearest Kia showroom. So now let's talk about the power figure of this car. So this car is having 1 liter of petrol engine with turbo which is producing 118 bhp of maximum power at 6000 rpm and 172 newton meter of maximum torque at 1500 to 4000 rpm. So this car has 4-cylinder engine having DCT gearbox with 7 gears which you can operate manually with the help of the paddle shifter, and which is great, and the gearbox is so smooth that gear transition पे कोई भी झटका आपको महसूस नहीं होता है. and 3-cylinder engine शोर बड़ा करती है. पेट्रोल है इसीलिए शायद समझ में आपको नहीं आ रहा है, बट अगर डीजल का आवाज़ आपको केबिन तक मिलता है. एंड वंस यू आर गिविंग द हार्ड एक्सेलरेशन, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल हो, आपको केबिन तक इसका आवाज़ आती है. हालांकि इसको अच्छे से डैम्पिंग किया जा सकता था. आई डोंट नो व्हाई Kia was not doing, and Kia is not doing for Seltos and as well as the Sonet 2. Still Kia इस बार इन्वेस्ट लेवल को बहुत हद तक बैलेंस रखने का कोशिश किया है, which wasn't good for Sonet and Seltos. So power figure की अगर बात कर ही रहे हैं, so obviously I need to mention that this car can achieve 0 to 100 km/h in just 10.48 seconds. And not only that, company claims that this is 3-cylinder engine and this car can achieve up to 180 km top speed.
सो ये इंजन यूज़ होती है सेम वेन्यू एंड सोनेट पे, बट इन दोनों गाड़ियों पे आपको 1.2 लीटर के नॉन टर्बो इंजन मिल जाती है एज एन ऑप्शन, बट किया सिरोस पे वो ऑप्शन नहीं देता है। सो मुझे बट कोई भी पॉइंट पे टर्बो लैग महसूस नहीं हुआ। सो 1500 आरपीएम के ऊपर आराम से टर्बो किक करती है एंड द कार इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल। सो इस गाड़ी का जो लो रेंज एंड मिड रेंज इज़ ग्रेट, यूजुअली जो किया या Hyundai गाड़ी पे मिलता है। सो यूजुअली इंजन से आपको पावर पैक परफॉर्मेंस तो नहीं मिलता है ड्यू टू द 3 सिलेंडर इंजन, but having the turbocharged engine, this is giving the decent power in streets also and as well as in highway, जो इस गाड़ी को कैरेक्टर को सूट भी करता है। सो फन टू ड्राइव वाला एक्सपीरियंस अगर भले ही आपको ना मिले, बट सिटी ड्राइव के लिए या लॉन्ग ड्राइव के लिए आपको एक हैसल फ्री ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। बट येस, 3 सिलेंडर DCT गियर बॉक्स पे आपको ओवरटेक वगैरह थोड़ा सा प्लान करके करना पड़ेगा, बट क्योंकि इंस्टेंट पिकअप वाला जो हिसाब किताब है इस गाड़ी पे नहीं है। अगर राइड क्वालिटी की बात करूं तो दिस कार इज़ अ लिटिल बाउंसी ड्यू टू द सॉफ्टर सस्पेंशन। ऐसे रोड रंबल्स हो या कोई पॉट होल हो तो आराम से गाड़ी ग्लाइड करते हुए निकल जाती है, बट ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता हो या बड़ी सी स्पीड ब्रेकर पे क्या होता है कि पैसेंजर को थोड़ा सा साइड टू साइड मूवमेंट फील करवाएगी। बट हाईवे पे अगर इवन ऑड रास्ता मिलती है तो क्या होता है, एंडुलेशन आपको फील होगा एंड अच्छा खासा आपको झुलाएगी एंड पैसेंजर का जो एक वर्टिकल मूवमेंट होगा, अप एंड डाउन मूवमेंट जिसको बोलते हैं, वो करवाएगी। बट स्मूथ रोड पे मोस्टली ये गाड़ी स्मूथ ही होती है। मेरे हिसाब से राइड क्वालिटी को थोड़ा सा और बेहतर बनाया जा सकता था बाई किया, बट गुड पार्ट इज़ दैट गाड़ी में आपको केबिन पे कोई भी झटका वगैरह महसूस नहीं होता है, इवन इफ़ यू आर कमिंग विद एनी इवन ऑड रोड या कोई ऑड पॉट होल पे। सो इस गाड़ी पे मिलता है आपको ड्राइविंग मोड्स। सो अगर आपको थोड़ी सी स्पोर्टी फील चाहिए सो यू कैन गो विद द स्पोर्ट्स मोड। हालांकि स्पोर्ट्स मोड पे आरपीएम का लिमिट थोड़ी सी बढ़ जाती है तो आप गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर तक खींच सकते हो, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको महसूस नहीं होगा। बट जितना भी बाउंसी सस्पेंशन हो, दिस कार इज़ वेरी स्टेबल एंड प्लांटेड इवन इन कॉर्नर्स इन स्पाइट ऑफ हैविंग दिस टॉल बॉय डिज़ाइन। पर जितना भी स्टेबल हो, डोंट ड्राइव दिस कार लाइक अ सेडान कार, एज आफ्टर एंड ऑफ द डे इट इज़ SUV। सो दिस कार इज़ ग्रेट। ब्रेकिंग फैसिलिटी थोड़ी सी सॉफ्ट है पर इट डज इट्स जॉब प्रीटी वेल। नाउ बात कर लेते हैं इस गाड़ी के डिज़ाइन की, विच इज़ वेरी पोलराइजिंग अकॉर्डिंग टू मी, और बहुत सारे वीडियो में भी यही चीज़ बोला गया है। सो इस गाड़ी को देख के लगता है कि मारुति वैगनर इज़ गोइंग टू जिम एंड मसल गेन करके आती है विद किया बैजिंग। सो भले ही डिज़ाइन थोड़ा सा पोलराइज्ड हो, बट अंडर द सर्फोमीटर दिस कार इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार। सो गाड़ी थोड़ी सी चौड़ी भी है, हालांकि पीपल आर टेलिंग दैट दिस कार इज़ मिनी डिफेंडर। सच में ये मिनी डिफेंडर है? सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो हालांकि यू विल गेट 189 मिलीमीटर ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस विच इज़ डिसेंट अकॉर्डिंग टू मी। सामने से ये गाड़ी का डिज़ाइन थोड़ा सा बल्कि लगता है, पर पीछे से अजीब तरह से लगता है मुझे ये। बट ऑल ओवर द बॉडी पैनल में आपको मिल जाती है एक ब्लैक क्लैडिंग, जो बहुत सारे कट्स एंड क्रीजेस भी आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा ऑल ओवर द बॉडी पैनल। तो ये ओवरऑल थोड़ा सा डिज़ाइन के मामले में थोड़ा सा एक्चुअली अजीब तो लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप अचानक से अगर ये इस गाड़ी को देखोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, स्पेशली अगर आप देखोगे इसका जो हेडलाइट का जो पोजीशन है, इसका टेल लाइट का अगर पोजीशन थोड़ा सा देखोगे, हाँ थोड़ा सा बाहर की तरफ है। सो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस पोजीशन पे इसका एक्चुअली हेडलाइट है या टेल लाइट है, थोड़ा सा वहीं पर एक्चुअली नॉर्मली गाड़ियाँ ठुकती है। तो ऑब्वियसली यू शुड हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। हाँ, गाड़ी को थोड़ा सा एक्चुअली जो हेडलाइट का पोजीशन है या टेल लैम्प का जो पोजीशन है थोड़ा सा अंदर की तरफ रखना चाहिए था, बट हालांकि ये चीज़ हुआ नहीं है। सो व्हाट आई कैन से, सो यू नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल वाइल इफ़ यू आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर कार। नाउ अगर टायर की बात करेंगे तो आपको मिलता है 17 इंच अलॉय व्हील। उसका डिज़ाइन मुझे थोड़ा सा बोरिंग सा लगा। ओवरऑल गाड़ी को देखने में तो थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था ऑब्वियसली, बट आई वुड से दैट
if you'd buy this car, it will take time to digest the design of this car. डिज़ाइन के मामले में हमेशा I used to say that designs are subjective, may you like it or may you not. Now start करते हैं इनसाइड कार की डिज़ाइन की. So start ही करते हैं पहले से पीछे से, and that is the boot space of this car. So the boot space of this car is 465 liter as standard, but it depends on the rear seat adjustment. अगर आपको एक्सटेंडेड फुट स्पेस चाहिए या सीट आपको ज़्यादा रिक्लाइन करते हो तो अपने मैक्सिमम लिमिट पे तो बूट स्पेस आपको मिलता है मिनिमम 390 लीटर, विच इज़ डिसेंट अकॉर्डिंग टू मी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म कार. So along with the boot, the main attraction is the back seat. So जैसा कंपनी क्लेम करती है बैक सीट कंफर्टेबल तो है. So you will get great under thigh support and due to the tall boy design आपको अच्छा खासा headroom भी मिल जाती है. So along with the sliding and reclining function. So the maximum reclining angle is great and along with the rear seat का जो maximum level तक slide करके आपको एक अच्छा खासा leg space मिल जाती है. आप फैल के आराम से जा सकते हो. So along with it आपको मिलता है level 3 तक ventilated seats. हाँ, पीछे में आपको मिल जाता है level 3 तक ventilated seats. हाँ, उसमें आपको heating option नहीं मिलता है, but at least इस प्राइस ब्रैकेट पे आपको लेवल 3 का जो एक वेंटिलेटेड सीट मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है. एंड ऑल्सो आपको मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट सन ब्लाइंड एंड पीछे आपको मिलता है 2 AC वेंट्स एंड अलॉन्ग विद द टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स एंड ऑल्सो जो पैनोरामिक सनरूफ जो पूरा पीछे तक जाती है. सो ओवरऑल आपको एक रूमी फील करवाती है. So if you are looking for a chauffeur driven car, so this is one of the best car in this particular price bracket. And also if you are looking for a car for long drive where you want to enjoy the view being on the back seat, of course this is also the car which you can take it. Not only that, अगर आप गाड़ी को occasionally चलाते भी हो, even if you are taking this car for daily to daily commute as well, so this is also a good car according to me. हाँ, मैंने इसका जो मैनुअल वर्जन भी चलाया इससे जस्ट पहले एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप एक न्यू ड्राइवर भी हो तो आप आराम से इस गाड़ी को चला लोगे क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग का जो फीडबैक है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है. एंड आप इसका जो क्लच प्लेट भी है बहुत ही, इसका जो क्लच लीवर है वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. तो आप आराम से इस गाड़ी को चला सकते हो इवन इफ़ यू आर अ न्यू ड्राइवर और इवन इफ़ यू आर टेकिंग दिस कार फॉर डेली टू डेली राइड. नाउ coming back to the front seats are also great. So just like the rear seats, front seats पे भी आपको मिल जाता है ventilated option and also you will get electronic seat adjustment. Under thigh support is also very good. अगर आप गाड़ी खुद भी चलाते हो जैसा मैंने कहा, so this is also one of the best car according to me. And of course सामने पे आपको मिलता है 12.3 इंच का एक touch screen infotainment display along with Android Auto and Apple CarPlay, and the quality of the display and the connectivity, it is great. Actually this is one of the typical Korean technology to be very honest, क्योंकि ये गाड़ी में आपका जो चीज़ दिया गया है एकदम परफेक्ट एंड क्वालिटी मटेरियल दिया गया है. सो अगर आप देखोगे छोटी छोटी चीज़ के ऊपर किया ने यहाँ पर बारीकी से इस पर नज़र रखा है. जैसे आप अगर देखोगे स्टीयरिंग व्हील को तो ये कन्वेंशनल स्टीयरिंग व्हील नहीं है. सो यूजुअली अभी नॉर्मल गाड़ियों पे अगर देखते हो कि राउंड टाइप का एक स्टीयरिंग व्हील मिलता है एंड आजकल के डेट में अगर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है, बट अगर आप गौर करोगे इस स्टीयरिंग व्हील पे थोड़ा सा देखोगे फ्लैट बॉटम एंड फ्लैट अप वाला स्टीयरिंग व्हील है. एंड ऑल्सो अगर किया का ब्रांडिंग अगर देखोगे तो थोड़ा सा ऑफ सेंटर है. तो पहले जब मैं इस गाड़ी का स्टीयरिंग को पकड़ रहा था कि मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, but after riding 1 to 2 kilometer I was completely used to with it. I can say that you will get a sporty feel having this kind of a steering wheel. सो कोरियन के साथ साथ एक्चुअली कम्पीट करते करते क्या होता है आजकल के डेट में आप देखोगे बहुत सारे गाड़ियों में, आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट पे क्या होता है कि भर भर के फीचर दे तो दिया जाता है, बट क्या होता है कि इन द लॉन्ग टाइम और समटाइम्स क्या होता है इसमें बहुत सारे बग्स आते रहते हैं एंड प्रॉब्लम होती रहती है. एंड क्या होता है यही जो फीचर आपको दिया जाता है और जिसके नाम पे ये गाड़ी कोई भी गाड़ी को सेल किया जाता है
वही चीज़ बाद में आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देती है। तो यही जो है किया या Hyundai, इसके साथ ऐसा नहीं है। सो दैट्स आई पर्सनली फील कि इंडियन कार मैन्युफैक्चरर को देख के सीखना चाहिए। And also coming back to the feature of this car, so along with this you will get 8 speakers which is from Harman Kardon, जिसका sound output is also very good, and also you will get 2 type C charging ports in the front and also the wireless charging facility. So overall अगर मैं बोलूँ तो इस गाड़ी का जो फिट एंड फिनिश है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। And now if I'll talk about the overall view of this car, view from this particular car. So to be very honest, मैं चलाते वक्त मुझे एकदम बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। एंड मैं थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा बैठा हुआ हूँ, ऐसा भी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा नीचे भी बैठा हूँ, ऐसा भी नहीं है। एक बैलेंस्ड सा एक पोजीशन है एंड मैं बॉनेट से लेकर एकदम पीछे तक मैं आराम से देख सकता हूँ। द विजिबिलिटी थ्रू द ORVM एंड IRVM इज़ ऑल्सो ग्रेट। एंड ऑब्वियसली आपको इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है अलॉन्ग विद द 6 पार्किंग सेंसर्स। तो ए पिलर से लेके अगर देखोगे साइड में एक छोटा सा पैनल टाइप का दिया गया है ताकि आप आराम से जज कर पाओगे साइड से कोई गाड़ी आ रहा है कि नहीं। अगर आप कोई टर्निंग लेते हो या कोई क्राउडी प्लेस में आप गाड़ी को थोड़ा सा लेफ़्ट राइट करके निकलना चाहते हो गाड़ी को लेके, तो भी आप आराम से कर सकते हो। सो देखिए छोटा छोटा चीज़ है, हाउ किया ब्यूटीफुली डिज़ाइन दिस पर्टिकुलर कार। सो अगर आप एक ओवरऑल अगर मैं बोलूँगा तो अच्छा खासा आपको व्यू मिल जाता है। तो अगर आप एक नया ड्राइवर हो एंड इफ़ दिस विल बी द फर्स्ट कार फॉर यू, सो ऑब्वियसली यू कैन आराम से गो विद दिस कार। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कोरियन ब्रांड भी मास मार्केटिंग करती है किया या Hyundai को अगर आप देखते हो, बट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। आई डोंट नो, इंडियन मैन्युफैक्चरर को भी धीरे धीरे करके ये चीज़ अडॉप्ट कर लेना चाहिए टाइम के साथ साथ। हालांकि ये कर भी रहा है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि एकदम ही नहीं हो रहा है, बट हाँ धीरे धीरे करके हो रहा है। महिंद्रा ने बहुत हद तक सुधार किया है, टाटा को अभी करना बाकी है। सो दैट्स व्हाट आई पर्सनली थिंक सो। Now the most important topic or the most important thing which I need to discuss about this particular car, and not only this car, and looking at the present scenario, and that is the safety standards of this car. So this car is having electronic stability control, EBD, electronic parking brake with auto hold, ISOFIX child mount, TPMS, 6 airbags at standard, and also ADAS level 2. सो जिस पे आपको मिलता है फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, सब मिला के दिस कार स्कोर्स 5 स्टार इन ग्लोबल NCAP। हालांकि ये 5 स्टार वाला जो थिंग है वो थोड़ा सा मिथ है, सो दैट आई विल डेफिनेटली डिस्कस इन सम सेपरेट वीडियो। सो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ वन ऑफ द सेफ कार इफ़ यू वांट टू टेक दिस कार फॉर योर फैमिली। नाउ बात कर लेते हैं द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड बाय एवरी इंडियन, कितना देती है? सो दिस इज DCT ऑफ कोर्स, एंड एज ऑफ नाउ आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट 12.5 किलोमीटर पर लीटर। हालांकि आप देख रहे हो कि आई एम ड्राइविंग दिस कार नॉट इन अ डिसेंट वे ऑफ कोर्स, बट हाँ डिसेंट आपको ट्रैफिक मिल जाता है। थोड़ा सा कभी कभार मैं हार्ड एक्सीलेटर भी दे रहा हूँ, कभी कभार बीच बीच में मैं बहुत हार्ड ब्रेक भी दे रहा हूँ। एंड बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट माइलेज, मे बी यू शुड गो विद द मैनुअल वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर कार। मैनुअल डीजल और मैनुअल पेट्रोल में आपको बहुत ज़्यादा माइलेज का डिफरेंस तो आपको नहीं मिलने वाला है, बट इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉर अ कार लाइक थोड़ा सा फन चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि पेट्रोल मैनुअल के साथ जाओ। बट हाँ 3 सिलेंडर इंजन है तो ऑब्वियसली आपको उतना ज़्यादा माइलेज तो नहीं मिलने वाला है, एंड दैट टू इट्स अ भारी भरकम सा गाड़ी। तो ऑब्वियसली आपको मैक्सिमम आपको पेट्रोल मैनुअल में भी अगर आप लाइट फुट पे चलाओगे, लाइक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड होता है 80 to 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, एंड दैट टू इन हाईवे, यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 15 to 16 किलोमीटर ऑफ माइलेज। एंड अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जाओगे तो हाँ 13-14 में आप सिमट जाओगे, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द पेट्रोल मैनुअल। बट अगर मैं अगर मैं DCT
ऑप्शन के साथ मैं बोलूँ जो मैं अभी चला रहा हूँ, सो एज आई हैव सेड आई एम गेटिंग अराउंड अप्रॉक्स 12 किलोमीटर पर लीटर ऑफ माइलेज. Obviously you can understand the way I'm driving this car. हालांकि I cannot say that it's a decent amount of mileage you will get it, but हाँ इससे अच्छा माइलेज आपको निकाल के देती है Venue या Sonet. So that's all about this particular car guys. So हाँ जैसा मैंने कहा, देखिए ये गाड़ी में आपको बहुत सारे फ्लॉज मिल जाएंगे. सी बंदे परफेक्ट नहीं होते हैं, तो हाउ कैन यू think that a car should be perfect. Okay, so that's all about this video guys. So I have to now go back to my home and I will tell you that whether you should buy this car in 2025 or not, or who can buy this car. Now who can actually buy this car? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट देखिए इसका जो बायर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. पहली बात तो ये है कि थ्रू आउट दिस वीडियो एंड इवन इनिशियल ऑफ द वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट द लुक ऑफ दिस कार आर लिटिल पोलराइजिंग. तो मे यू लाइक इट, मे यू नॉट, बट हाँ इस कार का जो डिज़ाइन है, इस कार का डिज़ाइन को आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा. बट इफ़ यू आर अ पर्सन टू बी ऑन द बैक सीट, सो आपके लिए यह गाड़ी बहुत ही बेहतर है. दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट शॉफर ड्रिवन कार. बट ऐसा नहीं है कि पीछे में बैठने में आपको मजा आएगा, आगे में आपको कोई मजा नहीं आएगा, या ड्राइविंग में आपको कोई मजा नहीं देगा, ऐसा नहीं है. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कार विद अ डिसेंट पावर एंड ऑल्सो डिसेंट ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें आपको अच्छा खासा एक ड्राइविंग क्वालिटी मिलेगा, जिसका ओवरऑल मटेरियल का जो क्वालिटी है वो अच्छा रहेगा, तो आप इस गाड़ी के साथ जा सकते हो. हाँ ये गाड़ी कन्वेंशनल एसयूवी के तरह तो नहीं है. ऑब्वियसली डिजाइन के मामले में बात करूंगा तो हाँ ये गाड़ी थोड़ा सा हटके तो है. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कन्वेंशनल एसयूवी जो मार्केट में हर कंपनी प्रोवाइड करती है, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द कार फॉर यू. नाउ अनदर थिंग आई नीड टू मेंशन यू दैट सम नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस कार. हाँ इसका जो हेडलाइट का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा मुझे ऑफ बिट लगा. एंड नॉट ओनली दैट, इसका जो डिजाइन हेडलाइट का जो पोजिशनिंग है वो भी थोड़ा सा ऑड है. तो मोस्टली आप देखोगे कोई भी गाड़ी में जब भी ठुकता है तो वो सामने बम्पर के तरफ ठुकता है साइड से. तो एक्चुअली अगर वो हेडलाइट का पोर्शन अगर टूट गया बाय एनी चांस, तो आपको शायद थोड़ा सा दिक्कत तो आ सकती है. एंड अनदर प्रॉब्लम व्हिच आई पर्सनली गॉट टू नो बाय सो मेनी किया सीरोस ओनर, एंड दैट इज द हेडलाइट थ्रो. इसका जो क्वालिटी, जो हेडलाइट का जो क्वालिटी है वो उतना मुझे खास लगा नहीं. सो आई थिंक यू शुड गो विद द ऑक्सिलरी लाइट्स, बट make sure that you will not buy any extra auxiliary lights which will disturb the other driver coming from the opposite direction. So that's all about this particular video guys. So if you like this video, and of course if you like this presentation, so please subscribe my channel, that is TBV India, and hit the bell icon so that you will get the earliest notification. And of course if you have any questions about this particular car or any car for that matter, so please follow me in my Instagram page and ask me over there. And also if you'd like me to ask in my Facebook page as well, and that also you can do, and the name of the channel is TBB India. So that's all about this video guys. So I have to take a sweet alvida from you. So please wear helmet while you are riding a motorcycle, and please wear seat belt while you are driving a car. So that's all about it video guys. So I have to take a sweet alvida. So till then, take care, bye bye, have blast, and ride safe, drive safe.